आज ये अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने अनदेखे सामर्थी हाथ के द्वारा इस बहन को छूकर शादी के 13 साल बाद बेटे की आशीष दी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2009 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ। ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੌਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਦੁਖੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਬੀ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਕੋੜੀਆ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਣੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 1.5 ਦਿਨ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣੇ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਬੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੱਥ ਭੰਨ ਲੈਣੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਬੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਆ 24 ਘੰਟੇ, ਮਤਲਬ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੋਨੇ ਬਲੌਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ IVF ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ IVF ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਾਓਗੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਬੇਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਆਪਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ
खुद जिद्दां मां बनदी। इस तरह मेरी मैरिज नूं फिर 13 साल हो गए साडे ते मेरे बेबी नहीं सी हो रहा ते इस तरह मेरी जिंदगी मतलब परेशानियां च ही मतलब बीतदी जा रही सी। फिर मैं मतलब बीमार बहुत ज़्यादा रहिंदी सी ते फिर बच्चा ना होने करके मेरे परिवार ने मतलब मैनूं बहुत ज़्यादा मतलब अन्य जगह ते इन्हां ने मैनूं लैके गए, मतलब 20 ਤੋਂ 25 जगह असीं अन्य जगह ते लैके गए होणे मैनूं ते 15 ਤੋਂ 20 डॉक्टर आपां चेंज कीते पर फिर भी कोई फर्क नहीं सानूं पै रिहा। इस तरह असीं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान सी ते सानूं मतलब मेरे ब्रदर नूं किसी ने दस्सिया कि तुसीं अपनी सिस्टर नूं खांबड़ा चर्च लैके जाओ। फिर मेरा ब्रदर अपने फ्रेंड ते बोलन ते मैनूं पहली वारी जलंधर चर्च विच लैके आया ते जदों मैं इत्थे चर्च विच आई हां पहली वारी ते इन्ने सारे लोग देख के ते मैं बहुत ज़्यादा हैरान होई ते उदों जदों मैं अंदर आपां बैठे पंडाल विच ते वीडियो गवाहियां चल रही सी ते वो गवाही आ रही सी कि एक सिस्टर ही ते वो पागल हो चुकी जिहदा डोल नाल खेडदी सी ते उहदी गवाही आई कि मैरिज तो इन्ने चिरां बाद उसनूं बेटी होई है। फिर उस तो बाद जदों परमेश्वर दे दास पुलपट ते आए ते उन्हां ने वचन सुनाया। वचन सुन के मेरे मन नूं बहुत ज़्यादा शांति फील होई। इस तरह फिर मैं लगातार चर्च नाल जुड़ी रही ते वचनां नूं सुनदी रही ते जदों परमेश्वर दे दास पुलपट तो प्रार्थना करदे सी कि दुष्ट आत्मा तो आज़ाद होवो ते मैं वो प्रार्थना नूं रिसीव करदी सीगी ते फिर मैं दुष्ट आत्मा तो आज़ाद होई ते फिर मेरे मन च होर विश्वास मैनूं हो गया कि जेड़ा परमेश्वर मैं दुष्ट आत्मा तो आज़ाद कर सकदा ना तो मैनूं बेबी नाल भी ब्लैस करेगा। 23 जनवरी 2022 ਵਿੱਚ मैं मीटिंग अटेंड कर रही ਸੀਗੀ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ नहीं ਸੀਗੇ। यीशु मसीह के नाम में जिनके बेबी कंसीव नहीं होते बेबी कंसीव हो। बिग टेस्टिमनीज को हम लेने पाए 2000 इस साल में 22 में यीशु मसीह के नाम में बिग टेस्टिमनीज को तेरा शैमुएल ऑन द वे हो, तेरी दबोरा ऑन द वे हो, तेरा मलाकी ऑन द वे हो। यीशु मसीह के नाम में तेरा सैमसंग ऑन द वे हो। वो बच्चे ऑन द वे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बच्चे ऑन द वे वो आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो ब्लेसिंग ऑन द वे वो आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਆਨ ਦੀ ਵੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ मौका दिता है। मतलब भी मेरे भी पॉजिटिव जो पहली बारी मेरी रिपोर्ट जी ना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो फिर मैं डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट चैक करवाने गई तो डॉक्टर भी देख के हैरान हो गए कि तुहानूं मतलब बेबी किस तरह कंसीव है, तुहाडियां मतलब ट्यूबां भी ब्लॉक सीगियां। कहंदे कित्थों हो गया चमत्कार। डॉक्टर दा वर्ड सी पहला कि चमत्कार किद्दां होया। तो मैं उन्होंने दसिया कि मैं मतलब चर्च जानी है जलंधर, मैं उत्थे जुड़ी हुई हाँ तो मैनूं मतलब परमेश्वर जीसस ने मैनूं ब्लैस किया है। फिर परमेश्वर ने 13 अक्तूबर 2022 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਮਤਲਬ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਬਾਜਪਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसे कि बाइबल में लिखा है, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होते हैं
और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को चंगाई दी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम स्नेहा है और ये मेरे मम्मा है, इनका नाम बीना रानी है। हम बटाला के रहने वाले हैं और आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। मार्च 2022 से मुझे फीवर होना शुरू हुआ और मैंने उसकी मेडिसिन लेनी शुरू की आम डॉक्टर से, और ये मैं खाती रही और उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। जब आसपास के डॉक्टर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था तो मैं एक हॉस्पिटल में गई। वहाँ जाकर मेरे सारे टेस्ट हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे टाइफाइड फीवर है। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन शुरू की। तो कुछ दिन मैंने मेडिसिन खाई पर उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। लगातार मेरी बेटी दवाई खा रही थी और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन हमें किसी ने बताया कि आप बटाले में एक डॉक्टर है और वो टाइफाइड का इलाज करता है, आप उससे इसका इलाज शुरू करवाइए और इसका बुखार ठीक हो जाएगा। उन्होंने जब हमें बताया तो हमने उस डॉक्टर से अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू कर दिया। तो उसने मेरी बेटी को ड्रिप लगाई और ड्रिप लगाने के बाद मेरी बेटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे बुखार भी बहुत ज़्यादा था और ना तो मुझे सांस आ पा रही थी और ना ही मेरा शरीर जो पूरा चल पा रहा था। और जब मेरी सांस रुकनी शुरू होगी तो मेरे हाथ जो थे वो मुड़ने शुरू हो गए और मेरा शरीर जो ठंडा पड़ना शुरू हो गया। जब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई तो मेरी फैमिली वाले बटाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने मुझे आईसीयू में दाखिल किया और वहाँ पर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगा दी और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे सांस क्यों नहीं आ रही। जब मैं 4 दिन आईसीयू में रही तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। छुट्टी लेने के बाद हम जब घर पर आए तो घर आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं है। जब मेरी बेटी पूरी बेड पे थी तो हम इसे अमृतसर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कराया और वहाँ से इलाज शुरू करवा लिया। जब मेरी फैमिली अमृतसर के दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मेरी टांगों पर लगाया और उन्होंने वो करने के बाद हमें कहा कि मेरी जो टांगों की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, उसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने हमें कहा कि इसका एक ही हल है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा दोनों टांगों का और उसके लिए आपको 16 लाख रुपये लगेंगे। ऑपरेशन होना है वो हम नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम 16 लाख रुपये लगा पाते। तो इसकी वजह से हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। जब मैं पूरी तरह बेड पर चली गई थी तो मुझे टॉयलेट और बाथरूम मेरे पापा लेकर जाते थे गोद में उठाकर। जब वो घर पर नहीं होते थे तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि मुझे घर पर और कोई भी उठाने वाला नहीं था जो मुझे उठाकर लेकर जाए। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। फिर मेरी फैमिली वालों ने मुझे व्हीलचेयर लेकर दी। फिर मैं उस व्हीलचेयर के सहारे से मैं जब मेरे पापा घर पर नहीं होते थे तो मैं व्हीलचेयर के सहारे से वॉशरूम और टॉयलेट जाती थी। हमने 20 से 25 डॉक्टरों को दिखा दिया था हॉस्पिटलों में, हमारी बेटी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। हमने 1 से 1.5 लाख रुपया लगा दिया था। मेरी उस हालत में भी हमारा विश्वास प्रभु पर था और हम पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे क्योंकि हमने यहाँ पर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखा था कि कैसे परमेश्वर लंगरों को चलाते हैं। हमें विश्वास था कि परमेश्वर मुझे भी चंगा करेंगे। मेरी फैमिली मुझे लगातार खामरा चर्च की ब्रांच गुरदासपुर में लेकर जाते थे और मेरे पापा मुझे 3 पहिए वाली व्हीकल पर लिटाकर लेके जाते थे। फिर एक दिन मैं खामरा चर्च की ब्रांच गुरदासपुर में गई थी और जब मैं वहाँ पर मीटिंग को अटेंड करी थी तो मुझे विज़न आया कि 18 दिसंबर को मैं खामरा चर्च के मेन एमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी और मैं वहाँ पर एमरजेंसी सेक्शन में बैठी हुई और व्हीलचेयर से चलकर परमेश्वर के दास के पास जा रही थी गवाही देने के लिए। और परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड किया और मुझे कहा कि अब तू ब्लेस है
और जब मैंने ये विज़न देखा उसके बाद मैंने इस विज़न पर विश्वास किया कि ये परमेश्वर की ओर से है और मुझे 18 दिसंबर को चर्च जाना है। फिर मैं 18 दिसंबर 2022 को मैं अपनी फैमिली के साथ खामरा चर्च में आई और मैं एमरजेंसी सेक्शन में व्हीलचेयर पर बैठी थी और उस दिन परमेश्वर के दास ने एमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए लोगों के लिए प्रार्थना की और मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। खुदावंत का आत्मा बता रहा है एमरजेंसी सेक्शन में, क्योंकि खुदावंत का रूह बता रहा है लोग हील हो चुके हैं, उन्हें उठाओ, उन्हें खड़ा करो। लोग हील हो चुके हैं, खुदावंत का रूह कह रहे हैं बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रेयर को रिसीव करने के बाद एमरजेंसी सेक्शन में जब टीम आई तो टीम ने मेरी बाजू और मेरी टांगों पर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के बाद मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैंने रोना शुरू किया और जब मैं रो रही थी तो रोने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में बहुत सारी ताकत जो है वो आ चुकी है, मेरी टांगों में जो है बल आ चुका है। और उसी समय मैंने अपने आप को चेक कर देखा और मैं अपने टांगों पे खड़ी हो पा रही थी और मैंने जब चल कर देखा तो मैं चल पा रही थी। उसी समय वो विज़न जो मैंने 1.5 महीने पहले देखा था मेरी लाइफ में पूरा हुआ और उसी समय मैं अपनी गवाही देने के लिए पुलपट पर गई और परमेश्वर की दासी ने मेरी गवाही को दिया। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। 10 महीने पहले टाइफाइड हुआ, जैसे दोनों टांगे रुक गई थी और फादर इनके बाथरूम टॉयलेट बच्ची को लेकर जाते थे उठाकर और पूरी तरह से बिस्तर पर थे। और आप बताएं क्या एक्सपीरियंस था इनका? 4 महीने पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इसको और जब हम हार गए थे। और क्या आपका विश्वास क्या था? और मेरा विश्वास अपने प्रभु पर था कि मेरा प्रभु ठीक करेगा। और चल बेटा चल, मेरे बच्चे व्हील चेयर आज शैतान तुम्हें छोड़ के जा चुका है, चल। और बस जी सबसे खास बात ये है कि इस लड़की को 1.5 महीना पहले जब ये बिस्तर पर थे, डेथ बेड पर थे, तब इस बच्ची को सपना आया कि 18 दिसंबर को तूने चर्च जाना है और अपोस्टल हमको दूल्हा तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। उस दिन के बाद मैं प्रॉपर हील हो चुकी हूँ और मैं अब चल रही हूँ, भाग रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी। अब मुझे व्हीलचेयर की जहाँ मुझे फैमिली के किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं टॉयलेट वॉशरूम खुद जाती हूँ और अपना काम मैं खुद करती हूँ। सभी मुझे देखकर हैरान होते हैं कि जो व्हीलचेयर पर थी अब ये खुद चल रही है, सब कुछ कर रही है। सभी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। जो लोग अब भी डेथ बेड पर हैं और व्हीलचेयर पर हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने प्रभु पर विश्वास किया आप भी विश्वास करें। जैसे प्रभु ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया वो आपकी भी शर्मिंदगी को दूर करेंगे, आपको भी आपकी परेशानी से निकालेंगे और आपको भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने जैसे मुझे चंगा किया वो आपको भी चंगा करेंगे। और अब हम इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय